everyone, I'm Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak, that is Samyak Civil Services and Samyak Civil Services in English, where we are going to continue with our series of special topics. So guys, already बहुत सारे special topics आप लोगों के साथ share हो चुके हैं and response भी काफ़ी अच्छा है आप लोगों का. I hope ये सारे topics आप लोगों को काफ़ी help करेंगे आपकी examinations में, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और जो अभी अपकमिंग टॉपिक्स हैं वो भी बहुत हेल्प करने वाले हैं. एंड ट्रस्ट मी और नॉट, अभी सिर्फ हिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो भी आपके कल्चर एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन्हीं टॉपिक्स के थ्रू आपका मैक्सिमम प्रिपरेशन हो सकता है. एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट जो बच्चा जीरो से प्रिपरेशन कर रहा है, the person who is starting from zero, who have just started preparing, should also have this background knowledge. तो मैं हर एक चीज already बहुत अच्छे से समझा रही हूँ. So guys, that is our aim, to clear each and every doubt of yours and bring you up with the best content that is possible in English and Hindi, both the mediums. So guys, one more great announcement for each and every one of you, that on 31st of July, that is this Sunday, we have a free seminar for the students associated with the PSI and RAS, right? So if you are preparing for any of these examinations, then you are requested to please join that free seminar on the Samyak building. That would be helping you in your subject matter experts will be present, so you will be able to solve the problems associated with the subjects. Also, you can bring up your guardians and your parents to attend that particular seminar and have a conversation with our subject matter experts who will be helping you all and guiding you towards the aim of yours, right? So let's begin, but before we start, it's an humble request to please subscribe to Samyak Civil Services YouTube channel and Samyak Civil Services in English YouTube channel, as both of these channels will be helping you all in the notifications, and then you can be very connected with us in the further classes. Yeah. So as we all are discussing the important topics and important I would say there's just important rulers right now with the history associations. Yeah. So what do you think would be important in today's class? I hope you all have noted the thumbnail already. You all are aware about that this topic is associated with the Man Singh of Amer. So guys, usually when we talk about these rulers, we see that we are just taking it too lightly. जब भी हम rulers वाला section करते हैं ना, मैंने मतलब as far as I am concerned with my experience, मैंने जितने भी बच्चों को prepare करते हुए देखा है, वो आपके culture पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, despite the historical provisions. Let me just tell you and let me just brief you. Historical provisions are equally important as compared to the culture. दोनों simultaneous चलते हैं. अगर विजय कीर्ति स्तंभ पे क्वेश्चन आएगा तो आपसे जैन कीर्ति स्तंभ भी पूछेगा, और दोनों में डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए. Vijay Kirti Stambh was dedicated to the victory of Kumbha, and when we talk about Jain Kirti Stambh, it was dedicated to Lord Adinath, Rishabdev. तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों का कंस्ट्रक्शन जो है वो भी डिफरेंट है. हम विजय कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं, इट्स अ 9-story बिल्डिंग, एंड whereas if we talk about the जैन कीर्ति स्तंभ, इट्स अ 7-story बिल्डिंग. तो दोनों में डिफरेंस है, काफी सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, बट इसमें क्या है, दोनों का रेफरेंस भी अलग है. एसोसिएटेड दोनों कुंभा से ही हैं. Why? Because it was in the reign of Kumbha that these two buildings were constructed, right? So we are starting with Man Singh. Any of the fact that you know is important with reference to Man Singh? क्या आप लोगों को लगता है मान सिंह के रेफरेंस में कोई और टॉपिक है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप लोगों को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है? Then please let me know through the comment section if it's that important. Yes. Any point with respect to Man Singh that is important? Apart from that ma'am, he was the ruler of the Amer dynasty or the Kachawa dynasty, you know? That's not an important point, right? Yeah, okay. So when we talk about Man Singh, or when we talk about the historical associations of Amer and the Kachawa dynasty, what is the prominent thing that we need to note down? What's the most foremost and the prominent thing that we can note down from these two topics? Yes. Okay, yeah. Let me brief you about Man Singh then, and let me just tell you about what all the incidences were there who provoked Man Singh to become such an important scholar and a ruler, right? So it started his reign period from 1589. Now 1589 is considered to be the time period where his father, who was his father? इनके father कौन थे?
इनके फादर कौन थे, कोई बताएगा? Who was his father? His father was Bhagwant Das. His father was Bhagwant Das. He died in 1589, and this was the time period when this particular Man Singh was crowned as the king of Amer. He was crowned as the king of Amer. Very important point to be noted down, guys. Man Singh is considered to be one of the most prominent rulers. One thing that I would associate over here with reference to Man Singh is just get a brief about what this history of Amer is about, right? ठीक है? सबसे पहले क्या होता है ना, whenever you talk about any of the historical ruler, you need to know from which dynasty he belongs to and from which area he has been residing to and what are the ancestrals that we get to know about him, right? So let's just understand them first, and then we will move towards the topics in detail, right? So here we are talking about the Amer dynasty or the history of Amer, which was ruled by the Kachawas. Right? Now when we talk about the Kachawas, their origin is traced from Lord Ram's son. Who was Lord Ram's son? Love and Kush. So Kush is referred over here. Kush's clan was Kushwahas, and later these Kushwahas were known as the Kachawas. Right? So we are talking about one origin theory over here. The another origin story says that they were the descendants of sun god. The other story says that, to be very particular about their area of rule, they ruled the particular provinces of Bihar. Near the Son River was the neighboring area that was associated with their particular dynasty or their territory, and then they migrated to where? Narwar region of Gwalior, that was MP. So this was the particular state of area where they were referring to, right? When we talk about the descendants of the sun, we can refer to them being called as Raghuvanshis. The Kachawas are known as the Raghuvanshis, right? रघुवंशीज भी इन्हें रेफर किया जाता है, सन डिसेंडेंट्स या सन लॉर्ड के डिसेंडेंट्स इन्हें माना गया है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इनके ओरिजिन से इंपॉर्टेंट है, इनके ओरिजिन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इन्हीं आमेर डायनेस्टी के कछावा रूलर्स का एरिया ऑफ रूलिंग देखूं, एरिया ऑफ रूलिंग में अगर इनका देखूं, रेफर करूं, then that what would be the area of ruling? Near the Dhundar river, there was a river Dhundar, right, which was, the area was also known as the Dhundar river area or the Dhundar region, where these people were ruling. It was near the Amer province, or basically we can see the province over here was the Amer. So these are some of the 4 points that we can note down with reference to the Amer, the Man Singh of Amer. जब भी हम आमेर के कछावाओं की बात करते हैं गाइज, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आमेर के कछावाओं की बात भगवान राम के सुपुत्र कुश के वंशजों से की जाती है। कुश के वंशज को कहा गया कुशवाहा, और कुशवाहाओं को आगे चलकर कछवाहों के नाम से जाना गया, कछावा डायनेस्टी के नाम से जाना गया। आगे चल के अगर हम बात करें इनकी उत्पन्न किस तरह से ये उत्पन्न हुए थे, तो एक चीज आती है कि भगवान सूर्य के डिसेंडेंट्स ये माने गए, भगवान सूर्य के वंशज भी माने गए, और इन्हें रघुवंशी के नाम से भी जाना गया। अगर हम बात करें उस एरिया की जहां से ये उत्पन्न हुए, तो वो एरिया था आपका बिहार के सोन नदी के आसपास का एरिया। सोन नदी से ये माइग्रेट हुए, ये चले गए कहां पर? नारवाड़ रीजन। नारवाड़ कहां आता है? आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। अभी अगर हम देखें कि ये कछावा किस एरिया में रूल करते हैं, राज करते हैं आज की तारीख में, या पिछले कुछ जमानों से किस एरिया में राज कर रहे हैं, तो वो हम देखेंगे ढूंढाड़ नदी, जो कि आपके आमेर के पास बहती थी। उस ढूंढाड़ नदी के आसपास आपके ये आमेर के कछावा राज करते थे। इज दिस क्लियर?
क्या यहां तक समझ आ गया है? क्या यहां तक समझ आ गया है? बताइए जरा कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप देके इफ इट इज क्लियर, देन वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट associated thing with it. Now when we talk about the sequence of the rulers of this particular area, then the first ruler that we would talk about with reference to the Amer would be दूल्हे राय. अब देखो, क्योंकि मान सिंह जी कछावा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि कछावाओं की क्लैन गॉडेसेस कौन है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लैन गॉडेसेस ऑफ कछावास, देन इट इज नन अदर देन दैट ऑफ द जमवाय माता. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जमवाय माता, जो कि आपकी क्या है? क्लैन गॉडेस है, राइट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर माता, दैट इज शिला माता. That is Shila Mata. Then she is the tutelage goddess. East Devi. She is the tutelage goddess or she is the East Devi. Right? तो ये जमवाय माता और शिला माता का आप याद रखिएगा. अब यहाँ पे हमने शिला माता और जमवाय माता की बात क्यों की है? Because दूल्हे राय was the person who was associated with the construction of this Jamwai Mata temple. And with reference to this Shila Mata, we would consider Man Singh Ji. Man Singh Ji was associated with the construction of this particular temple of Shila Mata, as during when his visit to Bihar, Bengal, he had a fight with King Kedar. किसके साथ में इनकी लड़ाई होती है? किंग केदार के साथ इनकी एक वॉर हो जाती है, और उस पर्टिकुलर वॉर के अंदर एक शिला उत्पन्न होती है. वन रॉक कम्स आउट ऑफ द सी, एंड व्हेन दिस रॉक्स कम्स आउट, शी सेज दैट एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर वॉर, अपकमिंग ऑल द वॉर्स विल बी वन बाय यू मान सिंह. उन्होंने ये कहा कि आने वाली सभी जितनी भी तेरी जंग हैं वो सब जंग तू जीतेगा मान सिंह. ये वरदान मान सिंह जी को मिला इस शिला से. तो मान सिंह जी उस शिला को लेकर आए और आमेर का जो महल है उसके अंदर इन्होंने शिला माता का टेम्पल स्थापित किया. ये ब्लैक कलर का आइडल है और ये बहुत ही सुंदर प्रति है. अगर आप देखेंगे शिला माता आमेर में आज भी अगर हम देखें तो इस मंदिर की पूजा की जाती है. और शिला माता की अगर हम बात करें, इनका जो मेला है, शिला माता का जो मेला है या इनका जो फेयर है, वो कब भरता है गाइस? नवरात्रों में 6th डे पर ये फेयर भरता है, यानी कि छठ का मेला इनका भरता है. कौन सी डे होती है? छठ तिथि होती है. छठ का मेला आपके शिला माता आमेर में भरता है. इज दिस मच क्लियर? Because it's very important to know the basic things of Amer if we are studying about the Kachawas and the Mansingh of Amer, right? Now when you talk about आपकी दूल्हे राय से एसोसिएटेड चीजें क्लियर है. अभी अच्छा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड विच यू नीड टू नोट डाउन, राइट. हाँ, ये सब चीजें आपको नोट डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि हाँ इससे एसोसिएटेड चीजें क्या थी भैया, इससे एसोसिएटेड चीजें क्या थी, तो आप बता नहीं पाएंगे फिर. ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? दूल्हे राय का स्टैब्लिशमेंट, मान सिंह जी का स्टैब्लिशमेंट, ये सब चीजें. चलो अब मैं आपको बता देती हूं इनका सीक्वेंस. दूल्हे राय के बाद में आते हैं आपके काकिल देव. दूल्हे राय के बाद में आपके आते हैं काकिल देव. काकिल देव के बाद में आते हैं पृथ्वीराज. पृथ्वीराज सिंह. पृथ्वीराज सिंह जी के बाद में आते हैं राजा भारमल. भारमल के बाद आते हैं भगवंत दास. And right after Bhagwant Das comes the Man Singh. Now before Kakil Dev it was दूल्हे राय. क्लियर है ये चीजें, ये सीरीज? अब इनमें याद रखो. देखो, भारमल जो थे वो फर्स्ट राजपूत ruler of Rajasthan who accepted the supremacy of Mughal. तो ये चीज बहुत याद रखिएगा.
और इनकी डॉटर थी हरकाबाई, इनकी डॉटर थी हरकाबाई, जिनकी शादी होती है अकबर से। ठीक है, इनकी ही डॉटर होती है हरकाबाई, जिनकी शादी होती है अकबर से। फिर भगवंत दास जी की भी डॉटर होती हैं, भगवंत दास जी की भी डॉटर होती हैं, मैरिज अलायंसेस इनके साथ भी होते हैं, जिनका नाम होता है मानबाई। उनकी शादी होती है जहांगीर से, इनकी शादी होती है जहांगीर से, राइट। इनके बेटे होते हैं दोनों के सलीम और जहांगीर, राइट। क्लियर है इतना? इन दोनों के बेटे का नाम क्या होता है? सलीम जहांगीर। ठीक है, इज दिस मच क्लियर? दिस वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये भाई बहन होते हैं दोनों, मान सिंह और मानबाई, भाई बहन। ठीक है, इन दोनों का रिलेशनशिप ये होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ मान सिंह। ठीक है, now we will understand how Man Singh was important and what were the provisions for how Akbar helped him to become a great ruler. ठीक है, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं। तो मान सिंह जी के फादर थे भगवंत दास जी। भगवंत दास जी was a great person in respect to the political relations which they shared with the Mughals. Now when we talk about Mughals in particular, जब भी हम मुगलों की बात करेंगे तो हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया था। ये माना था कि हम अपने आप ही मुगलों के बीच में, मतलब मुगलों के साथ में संधि करने को तैयार हैं और मुगल हमारे ऊपर राज कर सकते हैं। और वो राज किस तरह से करते थे? इनडायरेक्ट करते थे। वो इनडायरेक्टली आपको क्या करते थे? हेल्प करते थे। आपको खाली उनको कुछ सॉर्ट ऑफ टैक्सेस और कुछ पेमेंट्स करने पड़ते थे। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इन पर्टिकुलर, वी वुड सी दैट द कोरोनेशन सेरेमनी, द राज्य अभिषेक जो हम बात करते हैं, कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ दिस मान सिंह took place in 1589 right after the death of भगवंत दास who was his father. तो भगवंत दास जी की डेथ के तुरंत बाद आपके मान सिंह जी की अगर हम बात करें, इनका कोरोनेशन होता है। एंड इन दैट पर्टिकुलर कोरोनेशन सेरेमनी अकबर हेडेड ओवर हिम द मनसबदार ऑफ 5000। अकबर ने इन्हें क्या बना दिया? मनसबदार 5000 लोगों का। So he was made the Mansabdar of 5000 by none other than rest of the by not any other person but Akbar, right? At the time of this coronation ceremony, he was present in Akbar's court since he was 13 or 12 years old. ये 12-13 साल के थे जब से ये अकबर के कोर्ट में है। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज और पता चलती है, बहुत ही छोटी उम्र में अकबर की कोर्ट में ज्वाइन कर लेते हैं और अकबर इन पे बहुत विश्वास भी करते हैं ना। आगे चल के आपको पता चलेगा कि किस तरह का ट्रस्ट अकबर को इन पे था। Later we will get to know that in 1605 he was made the मनसबदार of 7000। जब इन्हें 7000 का मनसबदार बनाया जाता है तो एक चीज बहुत ही ज्यादा जो नॉर्मल से अलग होती है वो ये होती है that not any other ruler who belonged to any other clan or religion apart from the Muslims were made the मनसबदार of 7000। आज तक इतिहास में इस तारीख तक 1605 ईस्वी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था इतिहास में कि आपके मुगलों या मुस्लिमों के अलावा कोई और 7000 का मनसबदार बने। कोई नहीं बना था। मान सिंह was the first person who was the first ruler of the Rajput territory who became the मनसबदार of 7000 in the Akbar's court। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था मान सिंह के लिए जो हमें याद रखना चाहिए। लेटर वी विल गेट टू नो दैट अकबर कॉल्ड हिम फरजान, दैट वाज द सन। अकबर इन्हें क्या बोलते थे? फरजान कहते थे, या कहते थे कि ये मेरा क्या है? बेटा है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दैट दिस वाज द टाइटल दैट वाज गिवन बाय अकबर टू दिस पर्टिकुलर रूलर। हम कह सकते हैं कि अकबर ने टाइटल दे रखा था इन्हें। बिल्कुल टाइटल दे रखा था, दे ही रखा था टाइटल। क्यों नहीं देंगे अकबर टाइटल? बहुत ट्रस्टवर्दी रूलर थे अकबर के, बहुत ट्रस्ट था अकबर को। इनकी जितनी भी आपकी इनकी जो भी पॉलिसीज थी, इम्प्लीमेंटेशन था, उसमें बहुत रिलाय करते थे अकबर।
तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था अकबर का, right? So I hope this is very clear to you. Later, if we will move ahead, we would see his contribution in the Battle of Haldi Ghati. Guys, please note this question down as it is being asked in the examination. What is the current sequence of the diplomats that were sent to the Maharana Pratap court during the Battle of Haldi Ghati? When Maharana Pratap came into power, 4 diplomats were sent by Akbar to the court of Maharana Pratap. जब महाराणा प्रताप आपके पावर में आए, सत्ता में आए, तो अकबर ने महाराणा प्रताप के कोर्ट में 4 डिप्लोमैट को भेजा था। वो 4 डिप्लोमैट का राइट सीक्वेंस अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है। सीक्वेंस कहता है जलाल खां खोरची, मान सिंह, भगवंत दास एंड तोडरमल। मैम, दिस वाज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज 4 रूलर्स हु वेंट टू द कोर्ट ऑफ महाराणा प्रताप। सो प्लीज राइट दिस क्वेश्चन डाउन। यस, You want me to write it on the board? क्या आप चाहते हैं मैं ये बोर्ड पे लिखूं क्वेश्चन? चलो एक बार लिख ही देते हैं ताकि क्या कोई डाउट मन में नहीं रहेगा कि हाँ नहीं लिखा या नहीं हुआ। Choose the correct sequence of diplomats sent to the Akbar's court. Akbar sent by the Akbar करेंगे इसको एक तो, sent by the Akbar in Maharana Pratap's court in 1576 AD. That is the time period of Battle of Haldi Ghati. तो देख लेना एक बार के लिए ऑप्शन क्या होना चाहिए। 1 जलाल खां खोरची, 3 भगवंत दास, 2 तोडरमल, 4 मान सिंह, है ना। करेक्ट कोड्स चूज करना है आपको। कोड मैं दे देती हूं ABCD। द करेक्ट कोड वुड बी Yes. What do you think is the correct court in the sequence which they were sent to the court of Akbar? Yeah. I know the correct answer. On the first, it was the Jalal Khan Khorchi. The first person who was sent to the court was Jalal Khan Khorchi. The second person was Man Singh of Amer. The third was Bhagwant Das of Amer. And the fourth one was Todarmal. The fourth one was Todarmal. So the sequence is Jalal Khan Khorchi, Man Singh, Todarmal 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2 is in the second option. So this is the only correct option with reference to the Jalal Khan Khorchi's till Todarmal sequence in the Maharana Pratap court sent by the Akbar, the diplomats code, right? So this type of questions have been asked in the examination associating with the rulers and their references. अब ये आपको अगर आप सिर्फ मानसिंह पढ़ोगे ना तो नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, सिर्फ मानसिंह में नहीं मिलेगा, लेकिन ये कहाँ दे रखा है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में दे रखा है।
जब आप महाराणा प्रताप पढ़ते हो तब आपको ये सीक्वेंस दे रखा है, भगवंत दास में भी नहीं दे रखा, मानसिंह में भी नहीं दे रखा। पर ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी अभी मैं आपको बता दूं, अपन ने जब मेवाड़ खत्म किया तब अपन ने महाराणा प्रताप में ये सीक्वेंस देख लिया था, राइट। Now we talk about Battle of Haldigati. Then he was a diplomat sent by Akbar to the court of Maharana Pratap. Whenever we talk about him, we should know that he was sent to the court of Maharana Pratap along with whom? Asaf Khan. तो guys ये एक बहुत important fact है, प्रिंस मान सिंह। ये तो 1576 की बात कर रहे हैं ना अपन, तब तक तो ये रूलर नहीं बने थे, किंग नहीं बने थे, 89 में बने थे किंग। तो 1570 के अंदर तो ये क्या थे, 76 के अंदर ये प्रिंस ही थे। 1576 में प्रिंस मान सिंह अलॉन्ग विद असफ खान, अंडर देयर कमांडरशिप द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट। अब जब भी हम बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात करेंगे, वी शुड नो दैट दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन द कमांडरशिप ऑफ दीज टू पर्सन्स, प्रिंस मान सिंह ऑफ द आमेर ओनली। अब ये आप ये भी याद रखो, आमेर रीजन की ही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। आमेर तो नहीं बोला मैंने, आमेर बोला है, ये भी आप ध्यान रखना, है ना। आमेर प्रोविंस की बात मैं यहाँ पे कर रही हूं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मान सिंह जी का रेफरेंस क्लियर हो गया आमेर से? यस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। मान सिंह जी ऑफ आमेर, असफ खां, इसमें अकबर आ जाएगा, भगवंत दास आ जाएंगे, राणा सांगा आ जाएंगे, कुंभा आ जाएंगे, मोकल आ जाएंगे। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। मतलब अगर ये मान के चलो, अगर ये कर लिया ना, तो एक तरह से हमारा पूरा सिलेबस का 85% तक टॉपिक्स हो गए। And trust me or not, through these classes we are covering those topics only. Those 85% of your syllabus will be covered from these classes only. Right? Clear? Okay. So here we are talking about the diplomats which were sent to the court of Maharana Pratap by Akbar, and then we would see the Battle of Haldi Ghati. Prince Man Singh and Asaf Khan were the two commanders who were leading the Akbar's army. Mughal army के commanders कौन थे? ये दोनों थे। Clear है इतना? Shall we shift ahead? किसी को कोई डाउट है? हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ रहा है अच्छे से? उम्मीद करती हूँ आ रहा होगा, है ना? नहीं आ रहा हो तो बता देना। Now before he was crowned as the prince, king of the Amer provinces, right? ठीक है, ये before the Amer king, ये king बनने से पहले इनके काफी सारे कॉन्क्वेस्ट हुए अकबर के साथ में। अकबर जहां भी अटैक करते थे, कॉन्क्वेस्ट करते थे, वहां पर कहीं ना कहीं मान सिंह इन्वॉल्व होते थे। तो वो क्या क्या कॉन्क्वेस्ट थे, वो क्या आपके अटैक्स थे, वो सब अगर हमें ध्यान रखना है तो हमें इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना होगा, हमें बहुत अच्छे से कवर करना होगा। द फर्स्ट पर्सन दैट केम टू आवर माइंड विद रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक वाज हुम? अकबर। मान सिंह पढ़ते ही अकबर तो क्लिक कर ही जाना चाहिए। अब अकबर कर रहे हैं तो अकबर के बहुत सारे राइवलरीज भी होंगे। मैम बिल्कुल है राइवलरीज। तो उन्हीं राइवलरीज में से एक राइवलरी थे आपके मिर्जा हकीम, हु वाज कंसिडर्ड टू बी एज द हाफ ब्रदर ऑफ अकबर। अकबर के आपके स्टेप ब्रदर के रेफरेंस में हम बात करते हैं मिर्जा हकीम की। इन्होंने अकबर के अगेंस्ट क्या कर दिया? रिबेल। ही रिबेल्ड अगेंस्ट अकबर, ही रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबर। इन्होंने क्या किया? रिवोल्ट कर दिया अकबर के अगेंस्ट। रिवोल्ट किया तो अकबर तो चुप रहने वालों में से है नहीं। क्यों भैया रिवोल्ट क्यों किया अननेसेसरी में? मेरी प्रोविंस है तो मेरी रहेगी, रिवोल्ट करने की क्या जरूरत आ रही है? कहाँ जरूरत आ रही रिवोल्ट करने की? अब रिवोल्ट किया तो भुगतो। तो रिवोल्ट कर दिया। अब रिवोल्ट का रिजल्ट क्या निकल के आया? अकबर तो प्रिंस मान सिंह को लेकर और बाकी सारी बटालियंस को लेकर पहुंच गया आपके काबुल और कर दिया वॉर रेज। So this war association of the Kabul conquest is also very important. It took place during 1581 to 1587. We would see that the Muslim officers who were displeased with the liberal religious policies of Akbar were raging a war against him or started to revolt against him. And Mirza Hakim was one of those persons who provoked others to revolt against Akbar, as he wanted to become the king of the throne. मुगल एम्पायर का थ्रोन कौन नहीं बनना चाहेगा? मुगल एम्पायर का राजा कौन नहीं बनना चाहेगा? कोई भी बनना चाहेगा, है ना? तो उसी के लिए क्या करते हैं? रिवोल्ट करते हैं अकबर के अगेंस्ट। मैम व्हाट वाज दिस रिवोल्ट एंड वाज दिस सक्सेसफुल? हाँ बिल्कुल सक्सेसफुल तो रहा ये रिवोल्ट, लेकिन एक हद तक। अकबर की आर्मी के आगे कौन टिकेगा? एंड दैट टू हेडेड बाय
Man Singh and Asaf Khan. So no one was there to stand against them. What happened is revolt was suppressed by Man Singh and the supremacy of Akbar by accepted by Mirza Hakim. We would also see that the Kabul was now under the Mughal Empire and Man Singh was now made the governor of this particular provinces of the Kabul. तो ये मैम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काबुल और अगर हम बात करें मिर्जा हकीम तो इन दोनों में किस तरह से चीजें बैलेंस आउट हुई. ठीक है, काबुल को किस तरह से मिर्जा हकीम कॉन्कर करना चाहते थे और किस तरह से हमने उन्हें रोका और कैसे चीजें बैलेंस आउट हुई, ये बहुत अच्छा सा डिपिक्शन इसमें मेंशन्ड है. क्या इतना क्लियर है? इज दिस मच क्लियर ओवर हियर? टिल हियर इज दिस मच क्लियर? या do you have any doubts associated with this particular topic in detail? Yeah, nobody? Now we are even. Cool. Let's move ahead and understand that after the Kabul conquest, it was the Bihar conquest time. How the Gaya, the Gidhor, the Hajipur and were some of the kings of Bihar who accepted the supremacy of Akbar after Man Singh was appointed as the governor of Bihar in 1587. So we would talk about this period too, that in the 1587 time period, it was the Bihar conquest period. क्योंकि आपका जो काबुल वाला कॉन्क्वेस्ट है वो तो 1587 में खत्म हो गया. अब बिहार का कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट होगा तो ये अदर कॉन्क्वेस्ट हो गया, ये दूसरा कॉन्क्वेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है, so when we talk about the Bihar conquest category and when we talk about this Bihar conquest thing, we would to be note this point down that the rulers or the kings associated with the area of Gaya, Gidhor and Hajipur, they then at that particular moment belong to some of the like most powerful kingdoms, right? और उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इनके लिए भी ये जरूरी था कि अकबर की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर ले. अकबर की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करके इनको क्या मिलेगा? After accepting the Akbar's supremacy, what will they gain? Yes. Any idea what would they gain? No idea? तो भैया वो मुगल साम्राज्य है, उसकी सुप्रीमेसी गेन कर ली, एक्सेप्ट कर ली, तो एक वो फेवरिंग हैंड तो आ ही गया. कोई भी वॉर लड़ेगा तो मुगल्स पहले खड़े होंगे उनसे लड़ने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए आपके. तो एक चीज तो अच्छी हो ही गई है ना, और कुछ अच्छा हो या नहीं हो, है ना? तो वो तो हम मानते हैं कि अच्छा हो गया है. चलो, लेट्स मूव अहेड. So also note this point down that this can be asked in the examination, and in which year Man Singh was appointed as the governor of this particular province of Bihar. So it would be the year 1587. Please note this point down. Man Singh was suppressing the revolts of the Afghans under the Kutlu Khan and Nasir Khan command and captured the Odisha province too. तो उड़ीसा और बिहार दोनों को ही आपके मान सिंह जी कैप्चर कर चुके थे. उड़ीसा कर लिया, बिहार कर लिया, आपका काबुल कर लिया. अब थोड़ा बहुत जो बचता है वो बचता है आपका बंगाल वाला रीजन, है ना? उसको भी कैसे कॉन्क्वेस्ट मिलेंगे, कैसे अपनी पावर मिलेंगे, ये भी आपको भी पता चल जाएगा. नाउ कम्स द पूरी टेम्पल दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मान सिंह, which was already under the regulation and the control of the Man Singh ji. So we could now relate that there were the kingdom relationship between the Orissa and the Rajgharana of the Jaipur, right? Now we would see the construction of forts in the Rohitas of Bihar. So बिहार में एक एरिया था रोहितास वाला, वहां पर भी इनका फोर्ट कंस्ट्रक्शन आपका चल रहा था. Along with this, we would also see the Manpur city in Gaya, which was also established by him, which was also a great and a very well-known city, which was founded by him. तो ये मानपुर सिटी का रेफरेंस भी आप याद रखेंगे, ठीक है? और भी बहुत चीजें आएंगी अभी जो आपको याद रखने हैं. कुछ जगहों के नाम चेंज नहीं हुए हैं, कुछ के नाम चेंज हो गए हैं, कुछ के पुराने नाम नहीं है, कुछ के नए नाम है ना? दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? क्लियर है इतना? बिहार कॉन्क्वेस्ट समझ में आ गया, काबुल कॉन्क्वेस्ट समझ में आ गया. अब आगे बढ़े, क्योंकि कॉन्क्वेस्ट अगर समझ में आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि किसने किस पे अटैक किया था, है ना? किसने किस पे अटैक किया, ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. हु अटैक्ड whom, right? So let's move ahead and understand the story of a Man Singh. Now when we talk about story of Man Singh and the Bengal, what was the particular story that is being reflected over here?
मानसिंह और बंगाल के रेफरेंस में कौन सी स्टोरी होगी जो रिफ्लेक्ट की जाएगी यहाँ पे, बताइए। मानसिंह और बंगाल के रेफरेंस में क्या है जो यहाँ पे पॉइंट आउट अपन कर सकते हैं बेसिकली? हु कैन टेल? कौन बता सकता है कि मैम मानसिंह और बंगाल के रेफरेंस में ये स्टोरी थी या ये पॉइंट था जो हम कंसिडर कर सकते हैं, विच इज टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू एनी ऑफ द अदर एस्पेक्ट और एनी ऑफ द अदर कंसिडरेशंस। यस, व्हाट डू यू थिंक गाइस? या anyone who would like to mention any point over here? Anyone associating any point over here? Yeah. Okay. Cool. When we talk about Mansingh and Bengal, then that's very critical and a very crucial thing to be discussed. Very critical and a very crucial thing to be discussed. When we talk about 1594, he was the governor of Bengal. Mansingh was the governor of Bengal. He was this particular person who was ruling over this particular Bengal provinces, right? He established Akbar Nagar. इन्होंने क्या establish किया? अकबर नगर establish किया बिहार के अंदर. And then for the smooth and swift administration of the province of Bihar was to be regulated by him. और इसके बिहार के provinces का इनकी rulership governorship अलग है. It is considered to be the year of 1594 when he was the governor of Bengal. और वहीं बिहार की हमने बात की थी, that was the year 1587. तो 87 से 94 तक का difference तो आपको पता चली गया है, which was a 7-year difference in which these two territories were captured. अकबर नगर विच इज टुडे नोन एज दी राजमहल. तो भैया यहाँ पे मानपुर की बात की थी, मानपुर सिटी की, यहाँ पे बात की अकबर नगर की जो आज का राजमहल है. तो ये दोनों ही नाम याद करना, क्योंकि आपके अकबर के रेफरेंस में जब भी हम बात करेंगे तो ये दोनों ही एसोसिएटेड चीजें हमारे सामने पूछी जाएंगी कि किस किस रेफरेंस में आपको पता चल सकता है कि राजमहल की बात हो रही है, किस किस रेफरेंस में मानपुर की बात हो रही है. तो जब भी मानपुर सिटी आएगी, राजमहल की बात आएगी, आपको पता होना चाहिए कि किस किस का प्रेजेंट डे स्टेटस चेंज हो गया है और प्रीवियस डे स्टेटस सेम है. Right? Now when we move ahead, now we could see that now the Akbar Nagar was the capital of, it is in the Bengal province. So was his new capital now. Right? Isa Khan, Usman Khan, Afghan rebels were suppressed by Mansingh. पिछले हमने क्या देखा था? कुतलू खान वाली बात याद है आपको? कुतलू खान वाली बात आई थी यहाँ पे, कुतलू खान नसीर खान वाली. इनकी कमांडरशिप में इन्होंने उड़ीसा को कैप्चर किया था. यहाँ बात आ गई है ईसा खान, उस्मान खान और अफगान रिबेल्स की. इनके अंडर इन्होंने बंगाल को सप्रेस कर दिया. ये बंगाल के रिबेलियंस थे जिनको इन्होंने सप्रेस किया. तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं आपके पावरफुल एस्केप में आ रहे थे, कहीं ना कहीं ये पावरफुल कंट्रोल में आपका रिप्रेजेंटेशन बता रहे थे. दैट नाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी पावरफुल रूलर एंड इट वाज एक्सेप्टेड ऑल ओवर. दैट नाउ द Mughal supremacy was accepted throughout. Right? Next we would see the Shila Mata tale. We all know that the Shila Mata temple is being located in the provinces of Amer. आमेर के प्रोविंसेस के अंदर अभी भी हम देख सकते हैं शिला माता का टेम्पल है, शिला माता का मंदिर है. तो शिला माता का मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा बताइएगा कोई. वो शिला माता का मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा कोई बताइएगा. हाँ जी, शिला माता टेम्पल. Shila Mata temple being very very important and being very very prominent. Why was this important? कोई बता सकता है? स्पेसिफिकली शिला माता की क्या बात हुई होगी, या शिला माता टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंट रहा होगा? या देखो, जब भी हम शिला माता प्रोविंसेस की और शिला माता टेम्पल की बात करते हैं, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वन थिंग हैज नॉट बीन चेंज्ड. व्हाट? The idol is being worshipped in the same manner in which it was worshipped
earlier. ठीक है, एक चीज तो हम इसकी ये याद रखेंगे कि शिला माता अगर टेम्पल का रेफरेंस आपका आता है तो इट इज बीइंग वर्शिप्ड इन द सेम मैनर एज इट वाज वर्शिप्ड अर्लियर, राइट. वी वुड नाउ ओवर सी कि टेल क्या थी इसके पीछे. तो सबसे पहले हम देखेंगे केदार. ये कहाँ के ईस्ट बंगाल का किंग थे. केदार वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट किंग ऑफ द ईस्ट बंगाल रीजन एंड वॉज डिफीटेड बाय हिम. बाय हिम whom? बाय मानसिंह डेफिनेटली. तो केदार और मानसिंह दोनों के बीच में बैटल हुई बंगाल के अंदर, और उस बंगाल के बैटल के अंदर केदार वॉज डिफीटेड बाय मानसिंह. बहुत क्रूशल स्टेज चल रहा था बैटल का. मानसिंह was sleeping at one night in the East Bengal only. At that moment, he was not able to sleep very peacefully. So he went out of his camp and just was watching the sea. ठीक है, सी साइड कैंप्स होते थे पहले इनके, क्योंकि बंगाल वाला प्रोविंस है तो वो तो वैसे ही अराउंड सराउंडेड बाय सी है. तो he was just watching the sea and then at particular moment वो सुबह हो जाती है, वो स्नान वगैरह करके सूर्य नमस्कार के लिए जाते हैं, वो सूर्य को जल चढ़ा रहे होते हैं. एंड व्हेन ही वाज वर्शिपिंग द सन गॉड, अ ट्यूटलेज और आई वुड से अ स्टैचू और अ स्टोन और अ ब्रिक केम आउट ऑफ द वाटर, जिसको क्या कहते हैं, शिला कहते हैं. एक पत्थर आपके पानी में से बाहर आया, एक शिला आपके पानी में से बाहर आई, और शिला ने मान सिंह जी को वरदान दिया कि तेरे आने वाले सभी बैटल्स में तू जीतेगा, तो तू टेंशन मत ले और घबरा मत. इन्होंने उस होप के साथ में पूरी बैटल आगे से लड़ी, केदार को हराया, और हराकर ये वापस आमेर लौट रहे थे तभी वो शिला अपने साथ लेकर आए और आमेर के अंदर इन्होंने वो टेम्पल एस्टैब्लिश किया. दैट वाज व्हाई शिला माता इज द क्लैन गॉडेस ऑफ द कच्छावास ऑफ आमेर. आमेर के कच्छावाओं की कुल देवी शिला माता ही है. पूरे कच्छावा जितने भी राजस्थान के कच्छावा हैं उनकी तो ईष्ट देवी है शिला माता, लेकिन जो आमेर के कच्छावा हैं उनकी कुल देवी शिला माता है. जमाई माता को भी वो पूछते हैं, लेकिन कुल देवी के तौर पे वो आपके शिला माता की ही पूजा करते हैं. अब शिला माता और शीतला माता में कंफ्यूजन मत जनरेट रखना. शिला माता आमेर वाली है, शीतला माता चाकसू वाली है. चाकसू वाली शीतला माता का रेफरेंस चिकन पॉक्स से आता है, मीजल्स से आता है, बीमारी से आता है, और ब्रोकन आइडल से आता है. ओनली ब्रोकन आइडल विच इज बीइंग वर्शिप्ड इन राजस्थान इज दी Shitala Mata temple, right? So coming back to this point again, it was brought from Bengal after this war by Mansingh and installed in the Amer fort. She is the tutelage goddess of the Kachawa clan. तो पूरे कच्छावा क्लैन की ट्यूटलेज गॉडेस यानी कि ईष्ट देवी कौन है? शिला देवी हैं. याद रहेगा ये शिला माता टेम्पल का. चलो नेक्स्ट वी वुड सी द मानसिंग्स कॉन्ट्रीब्यूशन. So when we talk about Mansingh, he has constructed the following fort. That was the Ramgarh fort, the Amer fort, and the Radha Govind temple of the Vrindavan, which is a very great temple being constructed in the reign or the reign period of Mansingh, and it is even very prominent in today's date. The Ramgarh fort very prominent, the Amer fort very authentic tourist site in today's era too. तो आज के जमाने में भी ये बहुत ही ज्यादा prominent जगह आपकी मानी जाती है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द कोर्ट स्कॉलर्स ऑफ मानसिंह, इट वॉज नन अदर देन, अब कोर्ट स्कॉलर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है. द फर्स्ट वन बीइंग दादू दयाल जी. ही वॉज कंटेम्पररी टू मानसिंह. ही रोट वाणी ड्यूरिंग द मानसिंग्स रेन एंड लेटर वी कैन सी दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स वर आल्सो रिटन बाय हिम. तो दादू दयाल जी जो हम सेंट्स एंड सेक्ट्स में पढ़ेंगे, दादू दयाल सेक्ट, दादू दयाल सेंट, वही दादू दयाल जी की बात यहाँ पे हो रही है. ही वॉज कंटेम्पररी टू मानसिंह एंड इन हिज रेन पीरियड ओनली ही रोट दिस वाणी. इन्होंने एक बुक लिख दी, एक वर्ड लिख दिया जिसका नाम कर दिया इन्होंने वाणी. पुंडरीक विट्ठल ऑल्सो रोट सम ऑफ द फ्यू बुक्स विच वर एसोसिएटेड विद द मानसिंग्स रेन पीरियड. दे वर रागमाला, राग मंजरी, नर्तन निर्णय, राग चंद्रोदय. तो ये भी कुछ वर्क्स थे जो किसने लिखे थे? पुंडरीक विट्ठल ने लिखे थे. अब गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन भी ऑथर्स की राइटिंग्स आपके पास में अवेलेबल है ना, उनसे एसोसिएटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा, ये मान के चलना. किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एसोसिएटेड विद द राइटर्स एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन विच दे हैव मेड टिल टुडे. जितना भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उन सबसे एसोसिएटेड क्वेश्चन भी आपका आ सकता है एग्जाम में. हाँ, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि ये रागमाला किसकी बुक है,
स्टेटमेंट में दे देगा राग मंजरी वॉज रिटन बाय राणा कुंभा, क्योंकि उनका संगीत में कॉन्ट्रीब्यूशन था। नहीं, राग मंजरी नहीं थी मैम, संगीत राज थी, संगीत मीमांसा थी, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, रसिक प्रिया थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में फॉर्म हो सकते हैं कि हाँ ये सो एंड सो ने लिखी, ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे इफ इट इज नॉट रिटन बाय सो एंड सो रूलर्स। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वी वुड सी राय मुरारी दास, ही रोट द मानचरित्र, द मान प्रकाश, and then it was poet Hapa Barat who was a court scholar and a poet in the court of Mansingh. मानसिंह के कोर्ट के फॉर्मेट में अगर हम बात करेंगे, जगन्नाथ was also very important. He wrote the मानसिंह कीर्ति मुक्तावली. Then we would see the दलपत राज, he wrote the पवन पश्चिम पत्र प्रशस्ति। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप नोट कर रहे हैं अभी, क्योंकि इनसे एसोसिएटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब ये कैसे पूछे जा सकते हैं, आपके डिफरेंट पोएटिक फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं कि कौन से पोएट ने कौन कौन सी बातें कही, या ये आपको सिंपलर फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं कि भैया ये बता दो कि इस पोएट ने कहा था या नहीं कहा था, इसने लिखा था या नहीं लिखा था, अगर लिखा था तो इसका नाम बता दो। डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि चलो ठीक है भैया, आप तो दलपत राज जी जो आपके मानसिंह जी के कोर्ट में प्रेजेंट थे, उनकी किसी भी 2 किताबों के नाम बता दो। आ सकता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। नाउ वी वुड सी द टेल ऑफ जगत सिंह। टेल ऑफ जगत सिंह इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रोमिनेंट। वाई? जगत सिंह जो थे वो मान सिंह जी के बेटे थे, क्वीन कंकावती और मान सिंह जी के बेटे थे आपके जगत सिंह जी। नाउ व्हाई वाज जगत सिंह इंपॉर्टेंट? पहली बात तो चीज ये सन थे, ठीक है, आपके मान सिंह जी के। दूसरी चीज ये कंकावती के बेटे भी थे। कंकावती की अगर हम बात करें तो हम ये नोट कर सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर बंगाल कॉन्क्वेस्ट जो आपका चल रहा था 1587 के अराउंड, 1587 1594 पूरा टाइम पीरियड देख लेना, बंगाल और बिहार वाला कॉमन में भले चलो। तो वो जो कॉन्क्वेस्ट चल रहा था, वो जो कैंपेनिंग आपकी चल रही थी, उस पर्टिकुलर कैंपेन के टाइम पे इनकी डेथ हो जाती है। He died during this particular campaign, right? Now what we would see, so in his loving memory, Queen Kankavati constructed the Jagat Shiromani temple. तो जगत शिरोमणि टेम्पल का कंस्ट्रक्शन आपका इनकी याद में किया जाता है। जगत शिरोमणि टेम्पल में जो लॉर्ड कृष्ण का आइडल था, जो लॉर्ड कृष्ण की मूर्ति थी, ये वही मूर्ति है जो मीराबाई चित्तौड़ में पूजा करती थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया है आपका मेवाड़ और आमेर का। एग्जाम में देखो लिंक बहुत बिठाना बहुत ही समझदारी। अगर कोई समझ गया कि क्वेश्चन पूछे किस बारे में जा रहा है, तो आराम से मान के चलना नंबर आएंगे, आएंगे ही आएंगे नंबर। तो थोड़ा सा कुछ नहीं करना है ज्यादा, बस थोड़ी एफर्ट करने हैं और उन एफर्ट्स से अंडरस्टैंड करती हुई एक चीज समझनी है दैट दीज पर्टिकुलर रूलर्स, दीज पर्टिकुलर किंगडम्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट इम्पॉर्टेंट टू एन एक्सटेंट दैट दे वुड बी लाइक आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन एवरी एग्जामिनेशन। जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम में इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आए। अब जैसे मैंने अगर आपको, मैं मान लो चलो मैंने मोकल नहीं पढ़ाया, हो सकता है मोकल में क्वेश्चन आ जाए, जरूरी थोड़ी कि कुंभा और आपके लाखा से ही आएगा, मोका से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, so the tale of Jagat Singh is being referred over here. So he was the son of Man Singh and Queen Kankavati. He died during the Bengal campaign. Queen Kankavati constructed a Jagat Shiromani temple in his memory, and Lord Krishna's idol is being placed in this particular temple. It is the one that Mirabai worshipped in Chittor. तो मीराबाई ने जो चित्तौड़ में पूजा करी, वही टेम्पल आपके जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर रखा गया है, राइट? What were the titles that were associated with the Man Singh? मिर्जा राजा एंड दी फरजान। फरजान तो आपके अकबर कहते ही थे इन्हें। व्हाट वाज द रेफरेंस ऑफ फरजान? बेटा। और मिर्जा राजा का भी टाइटल इन्हें दिया गया। क्या ये दोनों चीजें आपको याद रहेंगी? टाइटल्स एसोसिएटेड विद देम एंड एनी ऑफ द थिंग विच इज एनी ऑफ द लाइक आई वुड से कि स्पेशलिटी दैट इज एसोसिएटेड विद देम, राइट? कूल। द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स एंड द लास्ट थिंग इज अबाउट दिस टॉपिक वाज द डेथ। So he died in 1614 in the Elichpur, Maharashtra. तो हम ये कह सकते हैं कि 1604 से लेकर के 1614 का जो इनका पीरियड था, that was a very struggling period as he was getting a lot of responsibilities on his shoulders. So that was considered to be one of the very like difficult periods of all the times. But still we consider his contribution to be one of the greatest contributions, right? One of the greatest contributions in the history which is associated with the particularly rulers like them, right?
एक क्विक सा रिविजन कर लेते हैं फटाफट से जो भी पढ़ा है उसका, ताकि फटाफट से चीजें दिमाग में याद हो जाए और हम अपनी क्लास को और इजी कर सकें. ठीक है, सो दिस इज दैट पैटर्न विच वी आर वर्किंग अपॉन. सो मान सिंह जी, ही स्टार्टेड हिज रूल फ्रॉम 1589 to 1614. He was crowned as the king of Amer in 1589 when the Bhagwant Das died. At the time of death of Bhagwant Das, he was made the crown king. We would see the origin of this Kachawa dynasties of Amer being referred as the Vidikush, who was the son of Lord Ram. His clan was Kushwaha, who were later known by the name of Kachawa. Now the origin and the descendants of the sun, this sun god, this is yet another theory associated with them, who mentioned the people of this particular reference as the Raghuvanshis, right? Being referred as the Raghuvanshis. The area of control from where they originated was the Bihar near the Son River, and then they migrated to the Narwad region of the Gwalior MP. Then we would see that area in which they were ruling today was the ढूंढाड़ province of the Amer. So ढूंढाड़ वाला जो region था आपका पूरा आमेर वाला, वहां पर ये अभी भी रूल कर रहे थे. और इन्होंने रूल करना, बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, जो रूल करना शुरू किया वो इसी पीरियड से किया, इसी लोकेशन से किया, राइट. नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज द रूलर. तो सबसे पहले आते हैं दूल्हे राय जी. ठीक है, इनके बाद में पूरे आपके आते हैं काकिल देव आते हैं, पृथ्वीराज आते हैं, भगवंत दास आते हैं, आपके भारमल आते हैं, फिर भगवंत दास आते हैं, फिर मानसिंह आते हैं. पर एक चीज जो हमें नोट करनी है वो क्या है यहाँ पे, कि दूल्हे राय का कॉन्ट्रीब्यूशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, एज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लैन गॉडेस टेम्पल. तो आपकी जो कुल देवी थी उनका मंदिर का निर्माण कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है. दैट वाज द जम्बाई माता टेम्पल. वी वुड सी द शिला माता टेम्पल बीइंग एसोसिएटेड विद द दैट ऑफ द किंग केदार एंड मानसिंह. तो अब ये टेल तो आपको क्लियर हो गया है. शिला माता के फेयर की बात अगर हम करें, दैट्स टेकिंग प्लेस ऑन द 6th नवरात्रि. कार्तिक वाले जो नवरात्र आते हैं उसमें छठ को आपका ये मेला भरता है. ठीक है, नेक्स्ट वी वुड सी दी दूल्हे राय. आफ्टर दूल्हे राय इट वॉज काकिल देव, आफ्टर काकिल देव इट वॉज पृथ्वीराज, आफ्टर पृथ्वीराज इट वॉज भारमल, भारमल के बाद में भगवान दास, भगवान दास के बाद में आपके आते हैं मानसिंह. तो भारमल का रेफरेंस दे सकते हैं, हर डॉटर हरकाबाई, हिज डॉटर हरकाबाई मैरिड अकबर एंड देयर सन वॉज जहांगीर सलीम. देन सलीम वॉज लेटर ऑन मैरिड टू दी भगवंत दास डॉटर मानबाई, राइट. Yes, also we would see the Bharmal was the first Rajput ruler of Rajasthan who accepted the supremacy of Mughals. And what was the reason why he accepted the supremacy? He was very wise. He knew what is going to happen and what's not going to happen. तो इन्होंने पहले ही सोच रखा था कि क्या क्या होगा जिसके बिहाफ पे मैं कुछ डिसीजंस दे सकता हूँ और कुछ जो क्या कर सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर. ठीक है, चलिए. Now we would see his father, it was Bhagwant Das. We would also see that he was paid the mansabs of 5,000 when he was coronated. And later on we would also see that in the 1605, when we would be transferring him when we have transferred him the mansabdar of 7,000, we should keep this in mind that he was a very genuine ruler. We would also see Akbar's court was joined by him, and Akbar called him the Farzan as the son. तो अकबर ने भी इनको क्या बोला था, खुद का बेटे की तरह बोला था. मैंने बताया था क्वेश्चन किस तरह के आएंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द बैटल ऑफ हल्दीघाटी. सो वी हैव सीन इन दैट पर्टिकुलर बैटल देयर वर 4 diplomats which were sent from the Akbar's court to this particular region for the I would say ki that probably we would say that this particular thing was taking place as it should not create any burden to anyone of else, right? Yeah, so you would see that the diplomat was sent by the Akbars and the to the court of Maharana Pratap, and then later on these we would say that जो आपके थे court members थे, they were not able they I won't be able to express them that what I am teaching over here or anything. तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपके डिफरेंसेस जनरेट कर देती हैं. कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए था इस टाइम पे भी. हल्दीघाटी का बैटल वरना नहीं होता. काबुल कॉन्क्वेस्ट की अगर हम बात करें 1581 से 87 तक का पीरियड है इसका. Muslims officers who were displeased with the liberal religious policies of Akbar started to revolt against him, and Hakim Mirza was one of those persons who was supporting them, right? Hakim Mirza की रेफरेंस में हम क्यों बात कर रहे हैं? He was considered to be one of the half brother, right? Step brother associated with them. So now when we talk about the step brother, there's I guess the sort of a sympathy thing which comes into your mind that wow, right?
Next thing that we have to note over here is the revolt, which was suppressed by Man Singh, and the supremacy of Akbar was accepted by the Mirza Hakim. So it was a suppressed revolt, right? Later we would also see the Kabul was now under the Mughal Empire, and Man Singh was now made the governor of this particular empire of the Mughals. Later also we would note, just a second, yes, the Bihar conquest, which took place from 1587 to 1994. We would see that the Bihar, Gidhor and the Hajipur, their kings almost on their own accepted the supremacy of Akbar. And we would see that the Man Singh was appointed as the governor of Bihar in the 1587 AD. Now, when we talk about 1587 AD, we would also note that he was suppressed to the revolts of Afghan after the Kutlu Khan and the Nasir Khan command and captured Odisha. Now, Odisha was not also under our control. So, it was basically dealing with a lot of problems, be it what we talk about. मतलब ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं जनरेट हो रहा है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत I guess I would say that lines could have been improvised in the reference of the Nasir Khan command and captured Odisha. This could have been modulated, right? So I will look after the modulation if it's possible, and later we would see that the Puri temple was also under the control of Man Singh, and the construction of the forts of Rohitas of Bihar, Manpur city in Gaya district was founded by him only, right? So it is important that he should note all these points up, right? Next thing we have in our mind is the story of Man Singh and Bengal. We would see that the Man Singh was the governor of the Bengal, and he also was establisher of the Akbar Nagar. Akbar Nagar was also established by him for smooth administration of the province. Later on, we would see the Akbar Nagar is also known as the Raj Mahal of the present. So, present Raj Mahal की भी हम बात कर रहे हैं. यहाँ हम reference दे सकते हैं आपके बंगाल का कि अकबर का जो नया capital province होगा, that would be none other than that of the Bengal province, right? Isa Khan, Usman Khan, and the Afghan rebels of the Bengal were suppressed by Man Singh. And also, we can note over here that the kings of Bihar also accepted the Mughal supremacy, right? Next, we would see the Shila Mata temple. Kedar was a ruler in the East Bengal and was defeated by him. So, Shila Mata idol was brought from Bengal after this war by Man Singh, installed in the Amer fort. She is the tutelage goddess of the Kachawa clan. मैंने बता दिया tutelage और आपके clan goddesses में difference. तो दोनों ही difference याद रखना. Tutelage goddess है ये rest of the Rajasthan की. ठीक है? चलो. Next is Man Singh's contribution in the architecture. It was none other than that of the Ramgarh fort and the Amer fort. Later, we would also see the Radha Govind temple of the Vrindavan, which was also very important and a prominent region. We would also see the court scholars of Man Singh. So, the first one comes as the Dadu Dayal Ji. He wrote the Vani, right? Vani was wrote by him, like I would say, with respect to a lot of things. We would see that this is somehow important, right? During the Man Singh's reign only we wrote Vani. Pondrik Vitthal wrote the further things, that were the Rag Mala, the Rag Manjari, the Natyan Nirnay, and the Rag Chandrodaya. Later also, the Murari Das, Rai Murari Das was there, who also wrote two books, that was Man Charitra and Man Prakash. Poet Happa Barat was also there, who was responsible for the court scholar of the court of Akbar. Later we would see the Jagannath, who was Man Singh's Kirti Muktavari, right? And Dalpat Raj, who was Pavan Pashins and Patra Prashastis written over in the papers and the, like I would say, the charts. Tale of Jagat Singh. Jagat Singh was the son of Amer, right? He was the son of Amer. So, the Queen Kankavati, keeping her heart very, very burdened. बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात है कि किसी भी माँ को खुद के बच्चे के दाह संस्कार और ये सब चीज़ें अटेंड करनी पड़े. बहुत ही मुश्किल वाली चीज़ है ना. So we can refer over here that Mirabai worshipped in Chittor. That particular temple is being brought to the province of this Jagat Singh, right? तो एक चीज हमने बहुत अच्छे से रेफर कर ली. The temple's architecture was associated with what? Nothing but the requirement of some basic things, right? Cool. Now, if we take this class ahead, we would see the titles associated with Man Singh, which were the Mirza Raja and the Farzan. Farzan means son. And also we would see how he was dead. So he died in 1614 and get at the Erikpur by the Maharashtra provinces. Erikpur region है आपके महाराष्ट्र के अंदर, तो वहां पर 1614 के अराउंड उनकी डेथ हो जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है. राइट? इज दिस मच क्लियर?
or you need to ask anything associated with it? Yes. कोई associated चीज है मानसिंह से associated जो आपको नहीं पता है? Because now this I won't be taking up another sessions to complete these topic ups. ये टॉपिक हो गया, अब अगली क्लास में अगला ही टॉपिक आएगा. Yes. Okay, so now I hope each and everything is very clear to you. So all that I would request to you all would be that please share this session with your friends. Ask your friends to join this session and interact with me on daily basis with one topic associated with the Rajasthan history. Right? Right now we will be conducting the Rajasthan history, then later on we will be adding up the portions of Rajasthan geography, economics and budget and everything. So guys, that was all for today. I hope you have enjoyed the session, and if you have enjoyed, then please give honest feedback about what this session, how this session felt to you, and was it an interesting session? And then if you feel comfortable, please share your negative feedbacks too. So thank you so much guys. Have a nice day. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep sharing. See you soon.